Well, the Allahabad High Court has dismissed the Gyanvapi Mosque Committee's appeal challenging the Varanasi District Court's decision to offer prayers in the cellar of the Gyanvapi Mosque complex. Justice Rohit Ranjan Agarwal of the Allahabad High Court has pronounced the judgment. We are joined by Advocate Vishnu Jain, who led the charge for the Hindu side. Mr. Jain, how important is this victory? And this is not, I don't see it as a victory or a loss. It's a legal proceeding which has happened in the court. The Anjuman Intizamiya had challenged two orders of 17th of January and 31st of January, appointing of receiver and also the starting of puja in the Gyanvapi complex. Today, the Honorable Allahabad High Court, after detailed hearing, after hearing both the sides, has dismissed their petition. So the effect of this order is that the puja will continue, and if they come to the Supreme Court, we'll file our caveat before the Supreme Court. So will you be shortly filing a caveat in Supreme Court? Yes, we'll. भगवान की शरण में इसलिए आए हैं कि जो व्यास जी के तहखाने में जो है जो पूजा पाठ अविरल जारी है वह जारी रहे। आज हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति माननीय राजीव रंजन अग्रवाल जी का जो फैसला आने वाला है, हम हिंदुओं के पक्ष में आए, हम पूरे देश के सनातन धर्मियों के पक्ष में आए, इसीलिए हम बाबा के शरणों में आए, उनसे निवेदन कर रहे हैं। सभी वादी महिलाएं हैं, सीता साहू जी हैं, लक्ष्मी देवी हैं और सभी लोग जो है माननीय बाबा के शरण में आए हैं कि जो है पूजा पाठ अविरल जारी रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAF दोनों जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। So this is a victory for the Hindu side petitioners. My colleagues Ashutosh and Swati joining us on the broadcast. Swati is joining us with the details of what the court has said. Yes, Swati. Yes, absolutely. The detailed order is out now. We've accessed the copy. Let me take you through three very important points. The operative portion. Point 111. In this point, the court says the appointment of receiver in no way affects the right or title of any of the party during pendency of the suit. A receiver is appointed to protect the property, being a representative of the court and of all the parties interested in litigation. This is an important point because the masjid side has raised this issue of the right or title. He, being the officer or representative of the court, is subject to the orders of the court and his possession is the possession of the court. The court is talking about the receiver in this particular point. Now, point 112, the court says failure of appellant to establish prima facie possession over the disputed property and plaintiff succeeding in building up a strong prima facie case negating the stand of the appellant leads to undeniable situation that stopping worship and performance of rituals by the devotees in the cellar would be against their interest. So in this particular point, the court talks about how a case has been established and it leads to an undeniable situation that stopping the worship will be against the interest of the devotees. Now let's take you through the point number 113, which is very important, talks about what happened since 1993. Prima facie, I find that act of the state government since year 1993 restraining Vyas family from performing religious worship and rituals and also by the devotees was a continuous wrong being perpetuated. So the court feels that stopping the puja was a wrong that was perpetuated by the then state government and that stopping the worship would be against the interest of the devotees. Okay, all right. Swati, thank you for joining us with those details. Let me go across to Ashutosh as well. Ashutosh, for several days now, the court has been hearing the case. The Masjid Committee had objected to the prayers, saying that this is against the Places of Worship Act, and they had also said that the prayers were not taking place before. Take us through the details of what the court has said and how this is a victory for the Hindu devotees who had been saying that it is their right to pray in the basement of the Gyanvapi Mosque. देखिए, ज्ञानवापी को लेकर जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बेहद अहम है क्योंकि 31 जनवरी को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक फैसला जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि व्यास जी के जो तहखाना है वहां पर पूजा पाठ की इजाजत दी गई है। 1993 तक हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होता आया था, नियमित तौर पे वहां पर पूजा पाठ होता था। इसके बाद एक मौखिक आदेश के आधार पर तत्कालीन जो मुलायम सिंह यादव की
की सरकार थी उसने इस पूजा पाठ को रोक दिया था और इसके साथ ही पूरे ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और व्यास जी के पूरे फैमिली को, परिवार को वहां से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद से हालांकि साल में एक बार वहां पर राम कथा जरूर होती थी, लेकिन तहखाने के अंदर नियमित तौर पे जो पूजा पाठ थी उस पर रोक लगा दी गई थी और इसी को लेकर जो व्यास जी का परिवार था उसने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उस वक्त ये जो मामला है वो तूल नहीं पकड़ पाया, उनको सफलता नहीं मिल पाई। इस बीच में हमने देखा कि सितंबर 2023 को व्यास परिवार की ओर से एक याचिका वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है जिसमें यह मांग की जाती है कि जो तहखाना है उसका रिसीवर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए, क्योंकि जो मुस्लिम साइट है यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी वो इस तहखाने पर कब्जा कर सकता है। उसने एक अंदेशा जाहिर करते हुए कोर्ट से ये मांग की कि इसका रिसीवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए और उस पर सुनवाई करते हुए 17 जनवरी 2024 को कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नहीं, ये शंका जो सही है, लिहाजा वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको रिसीवर नियुक्त किया गया। और इस बीच में एक और याचिका पड़ती है जिसमें पूजा पाठ की इजाजत मांगी जाती है और उस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूजा पाठ की इजाजत दे दी। अब इसी को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार एक तरीके से उसने इस पूरे फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उसने ये दलील रखी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इससे बार्ड होता है, यानी 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो सकती है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि चूंकि अभी जो रिलीजियस जो कैरेक्टर है वो डिसाइड नहीं है, वो डिसाइड हो चुका है कि वहाँ पर नमाज होती आई थी और पूजा पाठ नहीं होता आया था। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि ज्ञानवापी एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है 100 में एक तरीके से वो दर्ज है, ऐसे में वहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बात को लेकर तमाम सबूत ऐसे मिले हैं कि 1993 तक व्यास परिवार की ओर से वहाँ पर पूजा पाठ होता आया था। इसके अलावा वहाँ पर राम कथा भी होती आई थी और एक मौखिक आदेश के आधार पर चूंकि व्यास परिवार को बेदखल किया गया है, ऐसे में किसी आदमी को जिसका पूजा का अधिकार बनता है उसको पूजा पाठ से रोका नहीं जा सकता है। और उसी बिहार पर कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है कि 31 जनवरी का जो आदेश है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो बहाल रहेगा, यानी ज्ञानवापी के जो तहखाना है वहां पर पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई जा सकती। Okay, point taken. In fact, we have many political reactions also coming in. Ashutosh, do stay with us. We have a reaction and a breaking news coming in. This is NC leader Bashir Ahmed, who has now hit out interestingly at the courts, and he says, and I quote verbatim, nowadays judges don't look at cases as judges, they too decide on religious lines, unquote. He goes on to say they too are part of this society and at times they have quote unquote a biased approach. पिछले एक दहाई से मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है इंडिया के अंदर। लगता ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के बाद जितने भी फैसले आए हैं ये हर जगह कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो डिसीजन दे रहे हैं वो जज की हैसियत नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो 22 डिसीजन आ रहे हैं। जिस तरह ये इस मामले में पहले कोर्ट का एक फ़ैसला था, अब बदला गया। इसी तरह बहुत सी मस्जिदों के मामले में ये आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ताकतें इंडिया को तोड़ने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स को जज बन के डिसीजन चाहना चाहिए, ना कि वो किसी धर्म की राजनीति को समझते हुए डिसीजन देना चाहिए।